जो मैम सामने खड़ी है। तुम चुप हो जा, बॉलिंग तो बोल 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 बोल। सर मैं 30 सेकंड तक लगातार चुप रहोगे तुम गाना गाते, गाना शुरू हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। हाँ स्टार्ट करोगे आप करो, आप ही करो, साथ देना फिर। हाँ 7 जन पक्का नॉट प्रॉमिस। पहले भाई हाथ दे रहे तो। हाँ सर हाँ हाँ अरे तुम लोग अपने डायलॉग डिलीवरी बंद कर दो थोड़ी देर। ये सही है। Love can look just one time and last for a lifetime. JEE preparation, the thing in which I put it 2 years of my life, and this is also fact that very few persons who put it 2 years of their life get their desired results. But from this journey we should take some lessons that work in our life, and I personally learned some lessons from this whole journey, and they are still relevant for everyone in general. First, hard work can beat intelligence. So I am from a state board, not have much exposure, not even prepared for NTSE ever. And when I entered in my coaching and saw the person out there, they were like जैसे सर क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर एंड दे आंसर इट, एंड उन सबको देखकर और बाकी टेस्ट के रिजल्ट देखकर कि मेरे आते थे 30 रैंक आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स में, तो इन सब को चीज़ों को देखकर थोड़ी इनसिक्योरिटी सी महसूस होती थी कि मतलब इतने अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं कहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा इनके बीच। बट लकीली मेरे जेई टीचर की एक बात जो थी ना वो एकदम अंदर स्टिक कर गई, और आई थिंक दैट इज़ स्टिल रेलेवेंट कि हार्ड वर्क कैन बीट इंटेलिजेंस. इफ़ यू आर excusing that you are not intelligent enough or you do not have that IQ level, then you are mere excusing yourself. I agree the person who is intelligent enough had edge over others, but it is also not necessary that he will be more successful than you, because इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता, अब थोड़ा हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी भी उसमें मिलानी पड़ती है. तो अगर ये सोचकर तुम परेशान हो रहे हो या फिर तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, IQ लेवल और से कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है. इसे अभी ही ख़त्म कर देना, और आई थिंक यार ये मुझे अभी भी रेलेवेंट लगती है. नाउ सेकेंड, सेल्फ फोकस सॉल्व्स मोस्ट प्रॉब्लम. Now there is a point in our JEE preparation in which we are scoring around 150 to 200 marks, and at that time it seems very next to impossible task to cross the barrier of 200 marks. Now I was also in that situation. In my test series I was stucking around 180, 190, 180, 190, max 191, 192, but the barrier of 200 was not crossing. Now at that time my teacher suggested me not to focus on marks, not to focus on the others, let be focus on yourself, what the mistakes you have done, what the things in which you are lacking of, and when I focus on them, then I was able to cross the barrier of 200 and make it to the max score of 245, 246. And the same thing I am trying to put in my YouTube channel. When I was afraid of views, likes, subscribers, but when I focus on my content, my primary focus had become content. I have to bring the best production quality in my content. I have to get more deeper and deeper into the content. Then after getting low views in that videos also, I never get demotivated. So yeah, if you are focusing on the marks and the performance of others, then my friend, change this habit, especially if you are stuck at a particular score. Third, consistency is must for results. Whatever you are trying to achieve, whatever are your goals, consistency is the core element that you need to achieve them. नाउ कंसिस्टेंसी से आप लोग ये परसेप्शन मत निकाल लेना कि रोज़ 14 घंटे 12 घंटे पढ़ लेना है. इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैविंग डेज व्हेन यू आर बिकमिंग लो, यू आर नॉट गेटिंग मोटिवेटेड टू डू योर वर्क. फोर्थ एंड द लास्ट वन, लेट सम थिंग्स ओवर गॉड और वट एवर यू बिलीव.
नाउ जब मेरा जेई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उस टाइम मैंने स्कोर किया था अराउंड 127। अब जिस पर्सन का स्कोर टेस्ट मार्क्स में आता है 230, 240, 245 तक पहुंच जाता है एंड उसका फाइनल स्कोर इतना आता है, तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट जो उसको वीडियो को देख रहा है वो समझ सकता होगा उस स्टूडेंट की फीलिंग क्या होती होगी इस टाइम पर। मैंने टीचर से बात करना बंद कर दिया था, फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था, 5-6 दिन तक बहुत ज़्यादा से डार्कनेस फील हो रही थी लाइफ में। बट आई थिंक मैं अभी सोचता हूँ मैंने ज़्यादा रिएक्ट भी कर दिया था उस टाइम पर, बट इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मेरे को। बट अगेन लकीली मेरे को पेरेंट्स से, मेरे जो भी मैंने चीज़ें देखता था उनसे मेरे को चीज़ें पता लगी कि कुछ चीज़ें अपन को छोड़नी भी पड़ती हैं किसी पे। तो मैंने फिर सोचा कि अगर मेरा इसमें अच्छा आता था तो मैं अगले अटैम्प्ट पर इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, थोड़ा लीनेंट हो जाता। तो मैं फिर सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी में जुट गए। फिर लॉकडाउन आया, कभी ऊपर नीचे हुआ। मेरा एडवांस का तो बिल्कुल थोड़ा मन हट चुका था क्योंकि यूट्यूब से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था कि एडवांस के लिए इतना मोटिवेशन नहीं था मेरे पास। बट जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट हुआ उसमें मैंने परफॉर्म अच्छा किया, मेरे 210 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरी परसेंटाइल थी वो बहुत कम हो चुकी थी। वो तो जेई 2021 वाले तो जानते ही होंगे क्यों। तो उस टाइम पर भी मेरे साथ सेम चीज़ हो गई, सेम वही सिचुएशन आने लग गई। बट वही बात जो मैंने ये वाली बात थी, लेट सम थिंग्स ओवर गॉड और वट एवर यू बिलीव वाली बात याद आई। मैंने सोचा कि भाई अगर मेरा इसमें हो जाता तो फिर मैं IIT के लिए प्रिपेयर नहीं करता। तो उस टाइम पे फिर मैंने अच्छे से बहुत ज़्यादा, मतलब उतना तो मैं उस टाइम पे कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाऊँगा उतना मैंने पढ़ा था IIT के लिए। फिर मैं जब पढ़ा तो फिर यहाँ पर आए तो मेरे को लगता है कि यार अगर मैं उस टाइम पर सेटिस्फाई हो जाता ना NIT के से और NIT में चल जाता अच्छी में भी मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग भी, तो मैं IIT को मिस कर देता है। तो इसलिए कुछ होता है, आपका रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट वाला पोर्शन उसको थोड़ा सा किसी पर छोड़ दो यार, किसी पे थोप दो उसे। सब चीज़ों की टेंशन अपन को नहीं लेनी होती है। तो ये सब बातें यार मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही होगी। और जो भी JEE 2021 के स्टूडेंट हैं उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, उनके एग्जाम में 30-40 डेज, उनकी भी ऑलमोस्ट JEE की जर्नी थोड़ी पूरी होने वाली है। उससे आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपकी जर्नी रही है, अच्छा बुरा, एक बार कमेंट में लिख दो यार, खुल के कुछ चीज़ें अंदर से बाहर भी निकालनी चाहिए तो उन्हें कमेंट में लिख दो। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे इसलिए लाइक भी कर दो वीडियो को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन मचाते ज़रूर रहना। बाय।